Hello everyone, good morning. I hope you all are staying safe at your homes and doing all your question and answers given by your teachers and understanding all the concepts very clearly. So students, today I am going to explain you unit 4 that is very much important for you because it is a chapter operations of large numbers and in which a lot of different kind of questions are there. So kindly listen the video very clearly and carefully so that your doubts would be clear and start doing the questions given by your teacher. So stay safe, stay home, and most importantly be happy. Thank you. Hello everyone, I am Sakshi. So today let's start with the unit 4, operations with large numbers. You all must have done addition, subtraction, multiplication and division of smaller numbers. In the same manner, we are going to do all the 4 applications with large numbers as well. Okay, so let's begin with addition. For addition, we have 3 points with us. Number plus 0 is equals to same number. That means if you are adding 0 to any of the number, the result will be same as it is. Second point is also the same as first one. If number 0 is added with the number or number is added with the 0, so the result will be same as it is. Third point is the sum of numbers in any order is the same. That means if you are adding something and their order are changing, then the result will always be equal. For smaller numbers I am telling you, like 5 plus 6 plus 4, it will be 15 only. But if I change the order, means 4 plus 6 plus 5, then also it is what? 4 plus 6 is 10, 10 plus 5 is 15. That means if you are changing the order, then also you will get the same result. Okay. Now next is subtraction, which is very much important for this because now you will learn about different terms in the subtraction. I have done a solution of 4-digit numbers. I have subtracted 9786 with 2344 and the result is with you. So from the number I am subtracting something is known as minuend. यानी जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ नोन एज माइन्यूएंड. जिस चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड इज़ नोन एज सब्ट्राहेंड एंड द रिजल्ट विच वी गेट इज़ नोन एज डिफरेंस. इज़ इट क्लियर? जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ माइन्यूएंड, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ सब्ट्राहेंड एंड द रिजल्ट इज़ नोन एज difference. That's why in any word sums, if it is given or it has been asked to you ki find the difference of any number, then you have to subtract. You have to do subtract in that question. 3 formulas are there. If you have to find a difference, then what you are doing? Minuend minus subtrahend. You are doing minuend minus subtrahend. If you have to find out subtrahend, what you are doing? Minuend minus difference. Okay. और अगर माइन्यूएंड यू हैव टू फाइंड आउट, यू आर डूइंग डिफरेंस प्लस सब्ट्रैंड. यानी अगर डिफरेंस में सब्ट्रैंड को प्लस कर दिया जाए तो यू विल गेट माइन्यूएंड. दिस टेक्निक विल बी यूज्ड इन मिसिंग नंबर्स व्हेन यू आर not knowing the values of minuend and you are having difference and subtrahend values. So you will add both the terms and get minuend values. Okay, it will be more clear with the questions or examples I'll be telling you. So let's go on further. Exercise 4a. Simple addition questions are there. So let's begin. 8 plus 8 is 16. 16 plus 4 20. 20 plus 3 23. And 2 is carry. Now 2 plus 4 is 6. 6 plus 9 is 15. 15 plus 2 17. 17 and 2 19 का 9 carry हुआ 1. 1 plus 5 6. 6 7 8. 8 plus 4 is what? 12. 12 plus 1 is 13 का 3 carry हुआ 1. 1 plus 6 is 7. 7 plus 3 10. 10 plus 2 is 12 carry 1. 1 plus 3 4. 4 plus 2 6. 6 plus 4 10 0 carry 1. 6. 6 plus 5 11. 11 plus 7 is 18 carry हुआ 1. 1 plus 6 7. 7 plus 6 is 13 का 3 carry 1. 1 or 2 3. 3 plus 5 is 8 and 1.
if the digits are not having, if you are not having any of the digits on the another places, so you will consider that as 0, as you all know, and you will get the result. Okay. Question number 2, arrange in columns and add. So a question is given to you and you have to arrange all these terms in columns, like in the first question it is given to us. So let's start doing it. First number is 2038 and I have to write second number, so I will start with the last ones digit, ones place, 3, 7 and 4. Again for the next number starting with the ones digit, so that places ka no confusion is there and no mistake should be there. So we have to add all the numbers, so let's add them. 8 plus 2 is 10, 10 plus 1 is 11, 1 carry हुआ 1, 1 plus 3 4, 4 plus 8 12, 12 plus 8 is 20, 0 carry हुआ 1, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 2 or 3 5, 5 or 5 is 10, 0 carry 1, 1 plus 7 8, 8 plus 2 10, 0 carry 1, 1 plus 4 5, 5 or 2 7 and 6 will remain as it is, and your answer is correct. Okay. Now next question. The question number 3 is subtract and check the answer. First of all you have to subtract the terms and then you have to check the answers. So in this case question is 7 minus 8. अब 7 में से तो 8 minus नहीं कर सकते. What should I do? I have to take borrow from the other number. तो यहाँ से मैं इसको borrow करूँगी तो it will get 0 and it will be 17. 17 में से if I am subtracting 8 तो I get 9. Now 10 minus नहीं हो सकता तो I will take 1 from here. So it will become 10. 10 minus 9 will be 1. 7 minus 4 is 3. 4 minus 2 is 2 only. And then I have 5. So same, I'll take 1 from the number 3 and it become 15. Oops, it's 4 and yes, it's correct na, 15. Okay. 15 में से 7 माइनस किया तो how much it will be 8. Okay. अब again यहाँ पे 5 और इधर 12. 12 में से 5 गया तो it will be 7 and here it will be 5 only. So your answer will be this. Now I have to check the answer. तो what to do? As I told you कि आपको आंसर चेक करना है तो आप क्या करोगे? This is your difference. ये आपका सब्ट्रैंड था और ये आपका माइन्यूएंड है. तो डिफरेंस को अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस में सब्ट्रैंड को प्लस कर देंगे. तो व्हाट आई एम डूइंग इज डिफरेंस में सब्ट्रैंड को आई एम एडिंग. तो व्हाट यू हैव टू डू, जो भी आपका आंसर है 5 7 8 2 3 1 9 उसमें आप ऐड करोगे द सब्ट्रैंड, यानी जिसको आपने सब्ट्रैक्ट किया था पहले. तो ऐड कीजिए. 9 plus 8 is 17 कैरी हुआ 1. 9 और 1 10 और 1 11 1 कैरी हुआ 1. 1 और 3 4 4 और 4 8 2 and 2 4. 9 8 और 7 is 15 का 5 कैरी हुआ 1. 8 और 5 is 13 का 3 कैरी हुआ 1 and 6. So you will get that the minuend is the result which we get now. So 6 3 5 4 8 1 7 and you will get to know कि your answer is correct. In the simple form I'll tell you what आपने आंसर्स को सब्ट्रैक्ट किया. जो भी आपका डिफरेंस आएगा उसमें सब्ट्रैक्ट को प्लस करो. अगर रिजल्ट माइन्यूएंड आता है दैट मीन्स आपने करेक्ट सॉल्व किया है. ओके. नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट डिफरेंट क्वेश्चन. जनरली वी मतलब स्टूडेंट्स गेट confused or they had a lot of problems when zeros are there in a subtraction sum. First of all I'll tell you, you have to subtract this number from this. From के बाद वाले डिजिट को हम हमेशा पहले लिखते हैं. ओके. बिकॉज हमें उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक. नाउ I'll write this number starting from the ones place. Okay. 5 3 6 and 2. Okay, am I correct? 5 4 8 5 3 6 2. Yes. 3 4 5 6 7 digit number, 3 4 5 6 7 digit number, and it is 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8. I have to subtract it. अब सेम केस, 0 में से 5 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसको 0 बनाओ and it will be 10. 10 में से 5 किया 5,
अगेन 0 में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे तो ये 10 बना। अब पहले तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको 9 बना के इस वाले नंबर में हमने 10 ले लिया। 10 - 4 इज़ 6। नाउ 9 - 8 विल बी व्हाट, 7। अगेन आई विल डू द सेम वन। ये 0 हुआ, इसको हम 10 बनाएंगे, फिर 10 को 9 बनाएंगे एंड इट विल बी 10 ओनली। 10 - 5 विल बी 5। 9 में से 3 गया 6। अगेन 0। अब आप डायरेक्टली इसको 9 और इसको 10 लिख सकते हो। 10 - 6 इज़ 4 एंड 9 में से 2 गया तो इट विल बी 7। 9 में से 8 जाएगा तो डियर 1 आएगा ना, तो यू मस्ट नो अबाउट इट। ठीक है, जनरली हम क्वेश्चन बस देखते जाते हैं, करते नहीं जाते हैं उसको साथ में। सो इट इज़ 9 - 8 1, तो योर आंसर विल बी 7 4 6 5 1 6 5। इज़ इट क्लियर? 10 में से 5 5 एंड फिर अगेन वी हैव बोरोड समथिंग एंड इट इज़ योर आंसर। 9 - 8 इज़ 1, 10 - 5 इज़ 5, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 6 गया 4 एंड 9 में से 2 गया 7 and 0 we will not write it. Is it clear? Now the question number 5, which is fill in the missing digits. तो what it is, let's do question number first. अब इसके अंदर we have to fill this missing number. अब आप देखो, आपने प्लस का सम है ये, what I have to do, 2 और 3 5 होते हैं। 5 में मैं क्या ऐड करूँ कि 8 आ जाए, 3, राइट। नाउ इट इज़ 6, 6 + 1 इज़ 7। 7 में मैं क्या प्लस करूँ कि 2 आए, 7 में क्या प्लस करूँ कि 2 आए, तो ऑब्वियसली वो नंबर 10 से बड़ा होगा, 12 होगा। तो 7 में 5 प्लस किया जाएगा तो 12 आएगा। तो 1 नंबर तो यहाँ ऊपर चला जाएगा ना इन कैरी। 5 और 1 6, 6 और 3 9। अब 10 बनाना पड़ेगा तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे एंड 1 कैरी हो गया। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16 का 6 कैरी हुआ 1। 3 4 4 4 8, 8 और 5 13 का 3 कैरी हुआ 1। अब 1 और 1 2 होता है, 2 में क्या ऐड करूँ कि 4 आए, 2। इज़ इट क्लियर? नाउ बी पार्ट इज़, बी पार्ट में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का सम है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको माइन्यूएंड भी पता है और आपको डिफरेंस पता करना है, डिफरेंस इज ऑल्सो गिवन टू यू, सब्ट्राइंड पता करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज़ माइन्यूएंड, इट इज़ सब्ट्राइंड एंड इट इज़ डिफरेंस। तो हम इसमें किसी चीज़ को ऐड करके ये नंबर लेके आ सकते हैं। तो 6 में मैं क्या ऐड करूँ कि 3 आए, ऑब्वियसली 6 में आप कोई ऐसा नंबर ऐड करोगे ताकि वो 6 से बड़ा यानी कुछ 13 बने। तो 6 में मैं 7 ऐड करूँ तो 13 बन जाएगा, बट 1 कैरी इधर आएगा क्योंकि हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। अब 2 और 1 3, 3 में मैं क्या प्लस करूँ कि 9 आए, 6, 6 और 4 10 होता है तो 10 का 0 कैरी 1 हो गया। ठीक है, अब 4 और 1 5, 5 में क्या प्लस करूँ कि 5 आए, 0। 2 में क्या प्लस किया जाए कि 6 आए, 4। अब 1 में क्या प्लस किया जाए कि 2 आए, 1। अब नाउ यू कैन सी कि इट इज़ योर राइट आंसर। व्हाट यू हैव टू डू इज़, इसको उल्टा करके देखो। 13 में से 7 गया 6, 8 में से 2 गया 6। अब 10 में से 6 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गया 2 एंड 2 में से 1 गया 1 एंड योर आंसर इज़ करेक्ट। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सिंप्लीफाई। अब फर्स्ट पार्ट इज़ 42,26,624 plus this number minus this. Now what you have to do is, first of all add both the sums, both the digits, both the numbers, 2 4 and the number again, writing from the ones place, add them. 6 plus 4 is 10, 0 1 carry. 8 plus 2 is 10 or 1 11, 1 carry. 8 plus 6 is 14 और 1 15, कैरी हुआ 1। 6 और 1 7 और 3 10, 1 कैरी। 2 और 1 3 और 5 8, 4 और 2 is 6. Now this is your result. What you have to do is, इस result में से you will subtract the next number 1 5 0 3. To subtract it, what you will get, it is 0 and it is 7. What you will do, कैरी लिया 1 यहाँ से, ये 0 बन गया और ये 10, 10 minus 7 is 3. Again take 1 carry from the previous number, 10 minus 6 is 4, 4 minus 1 is 3, this will be 7 and taking carry it will be 10, 10 minus 5 is 5, 7 minus 0 is 7, 6 minus 3 is 3 and this will be
your answer. Is it clear? Now this type of questions are so easy, but if you are doing the questions like this one, in which a 3 4 5 6 digit number is there and 3 4 5 6 7 digit number is there, yani you have to subtract a 6 digit number from a 7 digit number, which is quite impossible. What you will do, you will first add both the plus digits. So 8 4 1 2 5 0, and this will be 0 1 5 9 8 and 6. तो उनको प्लस करो पहले. 0 5 और 1 6, 2 + 5 is 7, 9 1 10 0, कैरी हुआ 1, 8 और 4 12 और 1 13, कैरी हुआ 1, 1 और 8 9, 9 + 6 is 15. ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट रिजल्ट. नाउ जो नेगेटिव वाले क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव वाले डिजिट्स हैं, आप उनको लिखोगे. ओके, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज 7 5 4. इनको भी आप प्लस करोगे, क्योंकि अगर दोनों माइनस माइनस के साइन वाला चीज़ होती है तो उसमें ऑपरेशन प्लस लगता है, बट साइन आप माइनस का ही यूज़ करेंगे इन द आंसर ऑल्सो. तो 5 + 0 इज़ 5, 4 + 2 इज़ 6, 0 + 7 इज़ 7, 6 में 5 प्लस करोगे तो 11 का 1, कैरी हुआ 1, 1 + 3 4, 4 और 4 8, 2 and 1. Is it clear? Now what you will do, you will take this number and subtract it with this number. तो 1 5 3 0 7 6 0, और उसके अंदर आप सब्ट्रैक्ट करोगे. हमेशा 1 से लिखना शुरू कीजिएगा, सो दैट प्लेसेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड योर आंसर विल बी एक्यूरेट, नो प्रॉब्लम विल बी देयर. देखा, ये प्लस का साइन था तो मैंने प्लस वाला डिजिट रखा, इसमें नेगेटिव साइन था तो मैंने नेगेटिव रखा. अब प्लस में से नेगेटिव यानी माइनस को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो हम इसको 5 लेंगे, इट विल बी 10. 10 में से 5 जाएगा तो 5. अब इसको 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 में से 6 नहीं जाएगा तो हमें इसमें से कैरी चाहिए. 15 में से 6 जाएगा तो यू विल गेट 9. अब अगेन यहाँ तो 0 है, इधर 2 लेंगे. अब 0 को अगर कैरी किया हमने यहाँ से तो 10 बनेगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें उसको देना है. तो इसको 9 बना के इसको 16 बना सकते हो. 16 में से 7 जाएगा तो 9, 9 में से 1 गया 8. अगेन टेक 1 कैरी फ्रॉम दिस नंबर. 12 में से 8 जाएगा, यू विल गेट 4, 4 में से 2 गया 2, and 1 - 1 is 0. This will be your answer for this simplification. Is it clear to all of you what you have to do in this type of questions? Now we have exercise 4b, in which word sums, word problems are there. So question number 1 is, the sum of this number and a number is this. That means ये जो नंबर आपको दिया है 3,48,750, ये, और सम बोला है तो एडिशन प्लस अ नंबर, एक और नंबर है, उनका सम कितना दिया है आपको, 15 लाख दिया हुआ है. तो दिस इज़ योर स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन ओनली. व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको नंबर फाइंड आउट करना है. तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू के बाद वाला डिजिट तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं. अगर कोई नंबर इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो इक्वल्स टू के अगर राइट हैंड साइड में उसको लेके जाना है तो हम माइनस करते हैं. ठीक है. अब अगर नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें 15 लाख में से 3,48,750 को माइनस करना पड़ेगा. तो लेट्स डू दिस. अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी और बहुत इजी चीज़ बताने वाली हूँ, सो दैट आप इन एनी केस इन फ्यूचर जो भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत इजीली उसको कर पाएंगे. बहुत सिंपल है. क्या करना है हमें, 0 में से 0 जाएगा तो 0. अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है. यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट किया 1, रेस्ट डिजिट्स को 9 क्रिएट कर लो ऑटोमेटिकली, और जहाँ कैरी चाहिए वहाँ 10 कर लो, क्योंकि वैसे भी हमें उन सबको 9 बनाना ही पड़ता. तो उसमें आपकी क्लियरिटी भी रहेगी और अंडरस्टैंडिंग भी. 10 - 5 किया तो 5 आएगा, 9 - 7 तो इट विल बी 2. 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 गया 1 and 1, and this will be your number which you have to find out. So the number which is needed or which is to be find it out in the question is 1 यानी 11,51,250. Clear? Now the next question is, the difference of two numbers is 2,11,265, but the bigger number is given to us. We have to find out the smaller number. हमेशा आप देखोगे, इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं फर्स्ट वाले में,
बिगर में से स्मॉलर ही माइनस किया जाता है, कभी भी हम स्मॉलर में से बिगर को माइनस नहीं करते हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, और हमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है रिजल्ट किसी भी चीज़ का। तो रिजल्ट क्या दिया हुआ है, 2,11,265। बिगर नंबर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 550 लाख एंड 2000 minus the smaller number and your result is 2,11,265. Now you have to find out the smaller number. अब smaller number find out करना है तो क्या करोगे, मैंने क्या किया, इसको एज इट इज़ लिख लिया 50 लाख एंड 2000 को, जो इधर हमारे पास रिजल्ट था उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आती हूँ। तो ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 11,265 इज इक्वल्स टू, स्मॉलर नंबर को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाती हूँ, इधर वो माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 5,002,000, नाउ द नेक्स्ट नंबर इट इज़ 5,6,2,1,1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट। अब वही टेक्निक आजमाएंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। वो क्या थी कि अगर आपको कोई भी डिजिट से बोरो लेना है और बाकी सारे ज़ीरोज़ हों तो उनको 9 पुट करो और लास्ट वाला जिसमें कैरी चाहिए उसे 10 बनाओ। 10 - 5 इज़ 5 ओनली, राइट। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 1 में से 1 गया 0। अब फिर से वही चीज़ आ रही है, ये 4 बनेगा, इसको 9 और जहाँ ज़रूरत है वहाँ 10। 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, यस। एंड 9 में से 2 गया 7 और ये 4। तो आपका आंसर क्या आएगा, 47,90,735। तो व्हाट इज़ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हमें फाइंड आउट करना था। तो स्मॉलर नंबर हमने फाइंड कर लिया है, वो क्या है, 47,90,735। आई होप इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर टू गेट दिस नंबर। दैट मीन्स आपको किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इनके सम से ताकि रिजल्ट ये आ सके। तो उसके लिए आपको इनका सम पता होना चाहिए सबसे पहले। तो आई एम डूइंग इट। तो सम हम कर लेते हैं यहाँ पे 8, 9, 3, 6, 4, 5 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 6, 3, 5, 4, 8, 9। तो हम सम करते हैं, 9 + 5 इज़ 14, 4 कैरी हुआ 1, 5 और 8 फिर से 13 हो जाएगा एंड 1, 7 + 4 11, 5, 6, 7, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 1, 9 और 6 15. So the sum is given to you. Now what you have to do is to what number should be subtracted from. तो from के बाद वाले डिजिट जो है उसमें से हम नंबर को माइनस करेंगे। तो from के बाद वाली कौन सी डिजिट है, ये डिजिट है हमारी। ठीक है, तो from के बाद वाले डिजिट को हम पहले लेंगे 1, 5, 2, 9, 1, 3, 4 माइनस नंबर to get 10 lakhs. Okay, I'm not having much space, that I have done, that's why I have done this sum here. Otherwise you also have to do in the question only, right? Now what I'm doing is in the same manner I have done the previous question, I'm doing it again in the same manner. What कि 15,29,134 को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ एंड 10 लाख को इधर लेके आने के लिए मुझे उसे माइनस करना पड़ेगा बिकॉज वो दूसरी साइड पे प्लस का था। नंबर को ले जाना है, निकालना है, इक्वल्स टू के राइट में लेके जाएंगे, इधर वो माइनस में है एंड उधर जाके दैट विल बिकम इन एडिशन इन प्लस साइन। तो अब मैं उसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 1,5,2,9,1,3,4 में से मुझे 10 लाख्स को माइनस करना है। तो सिंपल है ना, 4 में से 0 किया 4, 3 में से 0 किया 3, 1, 9, 2, 5, 1 में से 1 गया 0। सो द नंबर विच कम्स इज द नंबर इज 5,29,134।
34. सो इट इज़ द ईजिएस्ट थिंग. बस आपको क्वेश्चन को समझना है, उसकी लैंग्वेज को रीड करना है बहुत क्लियरली, एंड यू विल गेट योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी मच important and little bit important and important from the point of view of your exams. So listen it carefully. A man had rupees 1 crore. 1 crore rupees है एक मैन के पास. He spent rupees 12,60,750 to buy a car, rupees 52,53,600 to buy a flat, and 5,68,440 to furnish the flat. यानी फ्लैट के अंदर जो भी फर्निशिंग है, to do that. अब how much money was left with him? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं खर्चे. एक्सपेंडिचर्स को आपको ऐड करना है. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्सपेंडिचर मतलब होता है कितना उसने खर्च किया. तो एक्सपेंडिचर्स क्या क्या थे उसके. फर्स्ट ऑफ ऑल ही बाइज अ कार, तो आप लिखोगे बाइंग अ कार फॉर व्हाट, हाउ मच रुपीज़, रुपीज़ 12,60,750. देन ही बाय अ फ्लैट that is for rupees 52,53,600. एंड फर्निशिंग में उसने कितना मनी खर्च किया है, एक्सपेंड किया है, दैट इज़ 5,68,440. अब इसका टोटल आपको फाइंड आउट करना है, तो ऐड करो. 5 + 4 9, 7 और 6 13 और 4 17, कैरी हुआ 1. 1 + 3 4 और 8 12 का 2, कैरी हुआ 1. 7 और 5 12 और 6 18, कैरी हुआ 1. 1 और 2 3 4 5 और 5 10 1 1 1 2 और 5 7. तो टोटल 70,82,790 उसने खर्च किए. अब आपको क्या करना है, मनी लेफ्ट विद हिम ये फाइंड आउट करना है. तो मनी कितना बचेगा उसके पास, हाउ मच मनी वॉज देयर विद हिम, इट वॉज 1 करोड़. तो लेट्स राइट इट डाउन. अब 1 करोड़ में से उसने कितना खर्च करा, 70,82,790. अब आपको लेफ़्ट मनी निकालनी है, तो आप इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे. तो विद द सेम फॉर्मूला दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, माइनस करके इसको कट करके 0 लिखो, रेस्ट ऑफ द डिजिट्स में 9 लिखेंगे. जहाँ भी हमें ज़रूरत है कैरी की वहाँ हम 10 लिखेंगे, बिकॉज 0 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2. तो द मनी विच इज़ लेफ्ट विद हिम इज़ 29,17,210. So this much of money is left with him. Is it clear? Now we have next question with us. This is a loss and profit question, so listen it very carefully. So before starting this question, I want to ask you something. अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा में ख़रीदते हो, कम में बेचते हो, दैट मीन्स आपने क्या किया, आपने एक चॉकलेट ख़रीदा, वो 10 रुपीज़ का था, लेकिन आपने उसको अपने एक फ्रेंड को दिया 5 रुपीज़ में, तो आपको तो सिर्फ 5 ही रुपीज़ मिले और चॉकलेट भी नहीं मिला. इसका मतलब आपने 5 रुपीज़ का क्या किया, लॉस किया. अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा में सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है, कम में सेल करते हो तो आपको लॉस होता है. यानी अगर आपने 10 रुपीज़ की चॉकलेट किसी को 20 रुपीज़ में दी तो आपको 20 रुपीज़ मिले, जिससे आप 2 चॉकलेट्स खरीद सकते हो. इज़ इट क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. Rajat bought a machine for rupees 2,57,89,500 and sold it for 2,75,20,000. अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है. कॉस्ट प्राइस यानी उसने कितने में ख़रीदा, तो कॉस्ट प्राइस को हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन. कितना था कॉस्ट प्राइस मशीन का, दैट इज़ रुपीज़ 2,57,89,500. एंड द सेलिंग प्राइस यानी उसने जितने में मशीन को सेल किया, सेलिंग प्राइस क्या है मशीन की, दैट इज़ रुपीज़ 2,75,20,000. नाउ यू कैन सी कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम है, यानी उसने उसको ज़्यादा में सेल किया है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है. तो आप कहेंगे येस, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो ही गेट अ गेन और प्रॉफिट. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दैट प्रॉफिट. तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा. तो सेलिंग प्राइस क्या था, 27,52
0 1 2 3 zeros और कॉस्ट प्राइस था 25 करोड़ 78 लाख 2 करोड़ 57 लाख 89,500। अब सब्ट्रैक्ट करो एंड यू विल गेट द प्रॉफिट। वही सेम मेथड, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0। अब यहाँ पे 1, ये 9 और ये 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0। अब इधर 4 और 11, 11 में से 8 जाएगा 3, ये 6 और 4, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 5 गया 1 एंड इट इज़ 0। तो हाउ मच मनी he gains 17,30,500. So this is the profit which he gains from the transaction. Now next question is there, it is also a profit loss question but of different type. Okay, so let's do it. Krishna had 2 motorcycles. Each motorcycle cost 84,000. यानी अगर 2 मोटरसाइकिल हैं और हर एक मोटरसाइकिल्स का कॉस्ट 84,000 है, तो कॉस्ट ऑफ 2 मोटरसाइकिल्स कितनी होंगी? 2 motorcycles, it will be what? 84,000 में आप 84,000 को ही प्लस कर दो and you will get the cost of 2 motorcycles. It will be 1,68,000, okay, rupees. Now he sold them together for rupees इतना, तो उसने सेलिंग प्राइस क्या हुई मोटरसाइकिल्स की? सेल किया उसको रुपीज़ 1,58,750 में। अब आप देख रहे हो कि ख़रीदा ज़्यादा में है, बेचा कम में है, तो उसको क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस कब होता है? जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाता है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस लॉस। तो आप क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे। कॉस्ट प्राइस था 1,68,000, सेलिंग प्राइस है 1,58,750, माइनस करो, 0 से 0 गया 0। अब इधर 7, 9 एंड 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ये बन गया 5 और 7, 17 में से 8 गया 9 एंड दिस इज़ 0। तो 9,250 का उसको लॉस हुआ। ओके, एक्सरसाइज 4C। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, 13,244 को मल्टीप्लाई करना है 321 से। तो लेट्स बिगिन विद द वंस डिजिट। 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 1 ज़ा 1। नाउ वंस प्लेस कंप्लीट हो चुकी है। आपको क्या करना है? क्रॉस लगाना है वंस प्लेस पे। स्टार्ट डूइंग मल्टीप्लिकेशन विद सेकेंड डिजिट। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। अब हमारी टेंस प्लेस भी ख़त्म हो चुकी है, तो वंस और टेंस प्लेस को क्रॉस करेंगे, 100 प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी हुआ 1, 3 4 ज़ा 12 और 1 13 का 3 कैरी हुआ 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। नाउ वी हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स। 4 8 और 4 12, 1 कैरी, 3 और 8 11, 11 12 13 का 3 कैरी हुआ 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 6 8, 8 और 7 15 का 5 कैरी हुआ 1, 3 और 9 12 का 2 कैरी हुआ 1 4। अब नेक्स्ट था क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी हुआ 1। नाउ 3 0 ज़ा 0, 0 और 1 तो 1 होता है। 7 3 ज़ा 21 कैरी 2, 3 6 ज़ा 18, 18 और 2 20। वंस डिजिट को क्रॉस करेंगे, सेकेंड डिजिट को स्टार्ट करेंगे। 7 2 ज़ा 14 कैरी हुआ 1, 7 4 ज़ा 28 और 1 29 का लास्ट डिजिट 9 लिखेंगे और 2 कैरी हुआ अब हमारा। 7 0 0, 0 में 2 प्लस किया तो 2, 7 7 ज़ा 49, 49 का 9 और 4 यानी 10th डिजिट को कैरी किया। 7 6 ज़ा 42 और 4 46। नाउ वी विल ऐड देम। 6 4 और 2 6, 9 और 1 10 कैरी 1 2 3 4, 9 6 7 8 and 4. So this is our answer. Now we have divide questions also with us. डिवाइड क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसमें आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। 35 को हम डिवाइड करेंगे 8750 को 35 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके देखोगे। 35 1 ज़ा 35 तो बहुत ज़्यादा,
छोटा नंबर आएगा 35 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 1 2 3 ज़ा 6 और 1 70 35 3 ज़ा करेंगे 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी हुआ 1 3 3 ज़ा 9 और 1 10। अब देखो अगर हमें डिवाइड करना है तो 1 ज़ा तो बहुत छोटा हुआ, 2 ज़ा करेंगे 70 आया, 3 ज़ा करके देखा 105 87 से ज़्यादा है तो हम करेंगे 2 ज़ा 70। अब माइनस करेंगे 7 माइनस 0 इज 7 ओनली, 8 में से 7 गया 1 175। अब हम उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अगर लास्ट में 5 है तो ट्राई करो कि 5 का ऐसा मल्टीपल लो जिसके एंड में 5 आता हो। Next question, we have to divide this number from this. अब carefully watch what I am doing in the question. 215798. अब first of all you all can see that 215 और इधर भी 215 है तो 1 ज़ा it goes 215 माइनस किया 0 आया। नेक्स्ट डिजिट नोट किया मैंने 7 तो इससे नहीं जाएगा तो 0 करके हम नेक्स्ट डिजिट नोट करते हैं। 79 भी नहीं जाएगा तो फिर से 0 लगा के आई विल राइट द नेक्स्ट डिजिट। अब 5 ज़ा है तो 215 ज़ा मैं करके देखती हूँ। अगर मैं 2 ज़ा करती हूँ तो व्हाट इट कम्स 2 5 ज़ा 10 0 1 2 1 ज़ा 2 1 3 2 2 ज़ा 4 नो 215 इंटू अगर 3 करती हूँ तो कितना जाता है 3 5 ज़ा 15 कैरी हुआ 1 3 1 ज़ा 3 और 1 4 3 2 ज़ा 6। अब 215 4 ज़ा करके देखते हैं। 5 4 ज़ा 20 0 कैरी हुआ 2 4 1 ज़ा 4 5 6 4 2 ज़ा 8 ओके 860 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो 3 ज़ा इसको सॉल्व करते हैं। 3 ज़ा 645। अब 8 में से 5 माइनस करो 3 9 में से 4 गया 5 में 7 में से 6 क्या 1। जो रिमाइंडर आया है वो हमारे अगर डिवाइजर से छोटा है तो दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो व्हाट विल बी आवर क्वेश्चन, इट इज़ 1003 एंड व्हाट इज़ आवर रिमाइंडर, इट इज़ 153। नाउ नेक्स्ट इज आवर वर्ड सम्स। So exercise 4D में we have word sums with us. So let's do them. First question is, students from 128 schools took part in a speed math competition. So there is a competition of maths in which 128 schools took part. Each school went 62 students. If each student answered 35 questions, how many answers to be checked? Number of schools कितने हैं भाई? Total number of schools that took participate, they are 128. Okay, or each school send how many students? How many? They are 62 students. So if I want to find out कि 128 schools में how many children are there, how many students are there, तो 128 multiply by 62 and I will get the number of students. Students in 128 schools, so they will be, I will have to multiply and I'll get the answer, इतने students. Now it is given to us कि each student answer, यानी each student answered how many question? 35 questions. तो how many answers to be checked, यानी जितने questions बच्चों ने किए हैं उतने questions check करने पड़ेंगे। तो इतने students कितने questions को answer करेंगे? 128 into 62 students answered how many questions? 128 into 62 into 35. तो let's do it. अब 128 को पहले 62 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है? 2 8 जा 16 कैरी हुआ 1 2 2 जा 4 1 5 2 1 जा 2 1 2 1 जा 2 8 5 जा 40 8 6 जा 48 का 8 कैरी हुआ 4 6 2 जा 12 12 और 4 16 कैरी हुआ 1 6 1 जा 6 और 1 7 तो 6 8 और 5 13 1 6 7 8 और 1 9 7 9 3 6। अब 7 9 3 6 स्टूडेंट्स ने 35 क्वेश्चंस आंसर किए हैं तो कितना हमारा आंसर्स को चेक करना है? 6
5 6 30, 0 कैरी हुआ 3, 5 3 15, 15 और 3 18 कैरी हुआ 1, 5 9 45 और 1 46, 1 7 5 35 और 1 36, 6 3 18 का 8 कैरी हुआ 1, 3 3 9 और 10 0 कैरी हुआ 1, 3 9 27 और 1 28 का 8 कैरी हुआ 2, 7 3 21, 21 और 2 23. तो वी हैव टू एड इट. 0 8 और 8 16 होता है, 1 कैरी किया 7, 8 और 6 हमारा कितना हुआ 14, कैरी 1 7 और 2. तो लेट्स चेक इट. कई बार क्या होता है कि हम सॉल्यूशन करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है, तो लेट्स रीचेक आवर आंसर. 5 6 30, 0 कैरी हुआ 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 कैरी हुआ 1, 5 9 45 और 1 46 कैरी हुआ 4. अब देखा 7 5 35, 35 और 4 39. यस, ओके. तो ऑलवेज रीचेक योर आंसर्स. 3 6 18 का 8 कैरी हुआ 1, 3 3 9 और 1 10 0 कैरी हुआ 1, 9 27 और 1 28 कैरी हुआ 2, 3 7 21 और 2 23. तो ये 0 6 7 9 और 8 हमारा 17 होता है. तो योर हाउ मेनी आंसर्स टू बी चेक? 27 7 6 60 60 2,77,760 answers were to be checked by the teachers. Is it clear? Next question. The product of a number and 165 is 1,20,450. प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. किस किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन? नंबर का प्रोडक्ट 165 के साथ कितना आया है? 1,20,450. अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें इक्वल्स टू के साइड में हमें कोई चीज़ लेके जानी है, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है चीज़, तो राइट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड में हो जाएगी. ठीक है. तो अब नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा. तो लेट अस डिवाइड द नंबर्स. 1 2 0 450. अब हम यहाँ पे अपने रफ में सॉल्व करके देखेंगे. 165 2 ज़ा कितना होता है? 2 5 ज़ा 10, 0 कैरी हुआ 1, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 2 1 ज़ा 2. अब ये तो 120 है. ठीक है. 120 तो बहुत ज़्यादा छोटा है 165 से, तो हमें 4 डिजिट नंबर्स लेने पड़ेंगे. 1204. कुछ ऐसा नंबर चूज़ करते हैं जो कि थोड़ा ग्रेटर हो. अब 2 3 4 हम सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, तो लेट्स गो ऑन विद 7 हम करके देखते हैं. ओके. 7 5 ज़ा 35 कैरी हुआ 3, 7 6 ज़ा 42, 42 और 3 कितना होता है? 7 5 ज़ा 35 कैरी हुआ 3, 7 6 ज़ा 42 और 3 45 कैरी हुआ 4, 7 1 ज़ा 7 और 4 11. तो देखो बिल्कुल नियर है ये इसके, तो इसको करके देखते हैं. 1 1 5 5. ठीक है. अब ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 9 एंड ये 14. 14 में से 5 जाएगा 9, 9 में से 5 गया 4 और इधर 0. तो 49 इससे छोटा है, तो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट नंबर. 163 में 3 की 65 इज देयर इंटू 3, 3 5 ज़ा 15 कैरी हुआ 1, 6 3 ज़ा 18 और 1 19 कैरी हुआ 1, 3 1 ज़ा 3 और 4 495. एग्जैक्टली द सेम. तो 73 विल बी 495. माइनस किया 0, नेक्स्ट डिजिट नोट की 0, तो 0 विल बी हियर. सो द नंबर इज 730 and you will get your answer. Now next question. Find the product of the greatest and the smallest 3-digit number made with. अब मैंने आपको डिजिट बनाना सिखाया है. अगर हमें ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर बनाना है तो क्या बनेगा? हमारे पास डिजिट्स ऑलरेडी दी हुई हैं, तो ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर क्या होगा भाई? सबसे पहले हम किस ऑर्डर में जाएंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो 952 दिस इज़ आवर ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर. अब आपको स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर भी बनाना है, तो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर में हम असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करेंगे. हमारे पास दोनों डिजिट आ गई. आपको क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है. आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है. ठीक है. 259. तो लेट्स सॉल्व इट. 9 2 ज़ा 18 का 8 कैरी हुआ 1. इसको साइड में लिखते हैं. ठीक है.
9 5 ज़ा 45 और 1 46 का 6 कैरी हुआ 4, 9 9 ज़ा 81 और 4 85, 5 2 ज़ा 10 0 कैरी हुआ 1, 5 5 ज़ा 25 और 1 26 का 6 कैरी हुआ 2, 9 5 ज़ा 45 45 और 2 47, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0 कैरी हुआ 1, 2 9 ज़ा 18 और 1 19 0, 8 6, 15 का 5 कैरी हुआ 1, 9 और 7 16 1, 10 और 4 14 कैरी हुआ 1. तो योर आंसर विल बी व्हाट? 246568. Okay, 2,46,568, and you will get your answer. Now the next question is, you have to find the greatest number of 5 digit that is divisible by 25. तो what you have to do is, first of all आप greatest number लिखोगे, greatest 5 digit number. So greatest 5 digit number क्या होता है? Greatest 5 digit number is 5 times 9. ठीक है. Now you have to divide it by 25. तो let's divide it. हम उसको divide करते हैं 25 से, 5 times 9 को. अब 25 1 ज़ा 25 होता है, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75 होता है. देखो 25 का टेबल बहुत सिंपल है, बट फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसको. 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 25 3 ज़ा 75, माइनस किया, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 24 उससे छोटा है, दैट मीन्स इट्स करेक्ट. 249. अब 249 क्वाइट 250 के आसपास है. 25 10 ज़ा 250 होता है, तो दैट मीन्स 25 9 ज़ा से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. 9 5 ज़ा 45 कैरी हुआ 4, 9 2 ज़ा 18 और 4 22. तो 25 9 ज़ा 225. आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 गया 2, 249. अगेन हमारे पास 249 है, तो फिर से हम 9 ज़ा करेंगे उसको. 225 माइनस अगेन हमारे पास 49 आएगा, 24 आएगा. नेक्स्ट डिजिट हमने नोट किया 9, फिर से 9 से करोगे 225 एंड यू विल गेट योर रिमाइंडर एज 24. बट हमें तो रिमाइंडर मिल गया 24. ठीक है. हमने जब डिवाइड किया 5 डिजिट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को, वी विल गेट अ रिमाइंडर 24. सो अ नंबर दैट इज 24 लेस देन दिस इज डिविजिबल बाय 25. तो आप क्या करोगे? सो अ नंबर दैट इज 24 less than greatest 5 digit number is divisible. You all have to always write these statements, only then your answer will be accurately correct. तो हम क्या करेंगे? 5 times 9 में से 24 को माइनस करेंगे. तो लेट्स सी हमारा आंसर क्या आता है. मैंने आपको डायरेक्ट माइनस करना भी सिखाया है. 1 डिजिट में से 1 डिजिट को माइनस करो, 9 में से 4 गया 5, 10 डिजिट में से 10 को माइनस करो 7, and the rest of digits are same. So what is a greatest 5 digit number divisible by 25 is what? This 99,975, and you will get your answer. You have to write it here, that greatest 5 digit number divisible by 25 is 99,975. Okay. Now simplification. In a simplification sum, the order in which the operations are to be done is given by odd mass. देखो, you know that operations, addition, subtraction, multiplication and divisions are there, but along with them we have to simplify. If we have to simplify any of the term, we uses odd mass. O stands for off means times. For example, if I am having 12 of 436, that means 12 times 436, which is 12 into 436. In any question, if off is there, you have to solve it first. D stands for division, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction. When there are brackets in a simplification sum, the order in which the operations are to be done is given by odd mass. B is brackets. Brackets two types के होते हैं. This is your first bracket, or we can say round bracket. This is your second bracket, or we can say curly bracket. If in case any of the brackets come, सबसे पहले आप first bracket को solve करते हो, उसके बाद second brackets को solve करते हो. तो with example let's solve it. It is
180 प्लस 5 इंटू दिस। तो हम सबसे पहले 180 प्लस 2 को एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। 100 में से 64 को माइनस किया तो वील गेट 36। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट फर्स्ट बिकॉज बॉड मास में पहले m आता है। तो 180 प्लस 2 मल्टीप्लाई 36 से करते हैं। 36 इंटू 2 हम साइड में सॉल्व करके देखते हैं। 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 72। नाउ वी हैव टू ऐड देम। 2 और 0 2 होता है, 7 और 8 is R 15, 1 carry, 2 1 2, 1 and 1 is 5 and you will get your answer. Now we have questions. Exercise 4A is there. Simplify question number 1. Little bit थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 7829 सबसे पहले ऑफ है तो हम सबसे पहले इस ऑफ को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑफ होता है हमारा मल्टीप्लाई। तो 15 में 50 की मल्टीप्लाई करते हैं। 15 5 ज़ा 75 और अगर एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो भी लगाएंगे। डिवाइडेड बाय रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आप सेम रखोगे। ठीक है, अब जिस चीज़ को भी सॉल्व कर रहे हो उसको अंडरलाइन कर दो ताकि आपको पता चले कि आपने क्या चीज़ सॉल्व किया है। अब बॉड मास में क्या होता है, डिवाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी विल डिवाइड दीज टर्म्स। तो 7829 विल रिमेन एज इट इज़। 25 3 ज़ा 75 होता है तो इट विल बी 30 मल्टीप्लाई बाय 132 माइनस 2824 प्लस 865। नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई दैम। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं साइड में कितना आता है। 30 3 से कर देते हैं, लास्ट में 0 लगा देंगे। 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 1 3 0, 3960। तो इट विल बी 7829 माइनस 3960 माइनस 2824 प्लस 865। अब क्या करेंगे, प्लस ऑपरेशंस को सबसे पहले प्लस करेंगे। तो हम ऐड करते हैं इन्हें। लेट्स सी कि व्हाट इज़ आवर आंसर। 9 प्लस 5 4 कैरी 1, 3 और 6 9, 8 और 8 16 कैरी 1 8। तो इट विल बी 8694 एंड एज यू नो अगर नेगेटिव ऑपरेशंस हैं, नेगेटिव के साइंस हैं तो भी हम उनको ऐड करेंगे बिकॉज अगर माइनस माइनस का नंबर है तो उसमें ऑपरेशन पॉजिटिव ही लगता है। तो 3960 2824। अब ये नेगेटिव है लेकिन ऑपरेशन प्लस लगेगा और जो आंसर आएगा उसमें नेगेटिव साइन रहता है। तो लेट्स ऐड देम। 4 6 प्लस 2 इज़ 8, 9 और 8 17, 1 3 प्लस 1 4 और 6। तो इट विल बी माइनस 6784। नाउ योर आंसर इज सिंप्लीफाइड। इसको अब इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8694 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6784 से। 4 से 4 जाएगा 0, 9 से 8 जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, इट विल बी 16। 16 में से 7 जाएगा, इट विल बी 9 एंड 1। तो योर आंसर इज़ 1910। दे आर सो ईजी अगर आप बॉड मास को पूरा कम्प्लीटली फॉलो करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन दिस क्वेश्चन ब्रैकेट इज गिवन टू यू, तो वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। फिर चाहे ऑफ पहले क्यों ना दे रखा हो, ठीक है, हम सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 168 को 72 के साथ में। 2 8 जा 16 कैरी हुआ 1, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी हुआ 1, 2 1 जा 2 और 1 3। अब 8 7 जा 56 कैरी हुआ 5, 7 6 जा 42, 42 और 5 47 कैरी हुआ 4, 7 जा 7, 7 प्लस 4 इज़ 11। तो 69021, ठीक है। तो 12096 डिवाइडेड बाय 21 ऑफ 16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 12096 डिवाइडेड बाय, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो आप 21 को 16 से पहले मल्टीप्लाई करोगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो 633। तो यह आया आपका 336। ओके, अब हमें डिवाइड करना है तो हम इसको इधर सॉल्व करेंगे। 336 को 12096 से डिवाइड करते हैं। अब हमें तो 336 का टेबल नहीं आता तो हम अपना रफ में सॉल्व करके देखते हैं कि 336 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है। 3 6 जा 18 का 8 कैरी हो 1, 3 3 जा 9 और 1 10 0 कैरी हो 1, 3 3 9 और 1 10। तो बिल्कुल इसके सही नंबर आ रहा है 1008। माइनस करो, 9 में से 8 गया 1 0, 2 में से 0 गया 2,
लेस देन है डिवाइज़र के, तो इट इज़ वेरी ग्रेट। 2016। अब 336 को मैं 6 से सॉल्व करके चेक करती हूँ। 6 6 36, कैरी हुआ 3। देखा, क्योंकि लास्ट में 6 था इसलिए मैंने 6 सोचा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने एकदम 6 कैसे बोल दिया। अब क्योंकि वंस डिजिट में 6 दिया हुआ है इसीलिए मैंने 336 को 6 से सॉल्व करने की कोशिश किया। तो 6 6 36, कैरी हुआ 3, 6 3 18 और 3 21, कैरी हुआ 2, 6 3 18 19 20, येस, एंड आई गेट द आंसर 2016। तो अगर मैंने डिवाइड किया तो मुझे आंसर क्या मिला? 36। तो सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आया 36। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमें सॉल्व करना है एंड फाइंड करना है कि हमारा ट्रू है आंसर या फॉल्स। 12 9 ज़ा 108, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना था, -7 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। ओके, अब 8 में से 7 गया, 1 0 1, 12 2 ज़ा 24। तो क्या दोनों तरफ ठीक है? नो। तो क्या है? इट इज़ फॉल्स। तो दोनों तरफ हमारा राइट आंसर नहीं है तो फॉल्स है, और अगर राइट आंसर होता तो ट्रू होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। ओके, तो इसमें हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स हैं, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट दोनों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? हम अपना फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 35 + 39, 5 + 4 9, 3 और 3 6, डिवाइड। अब हम स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करें, इसको स्मॉल ब्रैकेट भी कहा जाता है। 6 - 3 इज़ 3, 4 - 2 इज़ 2। ओके, अब इनको डिवाइड करते हैं। 23 को 69 से डिवाइड करते हैं। 23 3 ज़ा कितना होता है भाई? देखो, अब आप फिर से कहोगे कि मैम आपने डायरेक्ट 3 से क्यों किया? क्योंकि देखो 3 2 = 6 होता है। अगर मैं 3 को 2 से करती हूँ तो 6 आएगा, लेकिन हमें लास्ट में 9 चाहिए, तो मैं 9 से करके सॉल्व करती हूँ। 9, येस, एंड आई गेट द आंसर 69। ओके, सो 61 - 3, ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। 61 में से 3 माइनस करोगे, you will get 58, and this is your answer. Okay, I know this chapter is so vast, that's why in the introduction I told you कि बहुत clearly, बहुत carefully इस chapter को सुनिएगा। बहुत सारे questions you have to do, so बहुत slowly एक एक topic को listen करके अच्छे से do all the questions. Okay, I hope this video will definitely benefit you all. So good luck, stay home and be happy. Keep doing maths. Thank you.